Hello dear students, today we will take the next problem of law of parallelogram. Here two forces are given, P is equal to 75 Newton and Q is equal to 125 Newton, and there is the angle given between those two forces. Okay, so here P is equal to 75 Newton, Q is equal to 125 Newton, and theta is equal to 20 plus 35 55 degree. Okay, and we have to find out the resultant. So formula for resultant, R is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Okay, so here 75 square plus 125 square plus 2 into 75 into 125 into cos of 55. Okay, so we'll calculate the answer. Yes, 75 square plus 125 square plus in bracket 2 into 75 into 125 into cos of 55, bracket complete, and we have to take the square root of this. So the answer is 178.89. R is equal to 178.89 Newton. Okay, similarly we will find alpha. What is alpha? Alpha is the angle of inclination of resultant. So alpha is equal to tan inverse of, okay, we have to find out the direction of resultant with respect to P. So with respect to P we have to find out, that's why P will become in denominator. So here 125 sine 55 plus 125 cos 55. So alpha is equal to, we have to find out, you will find 75 plus in 125 cos 55. One 125 sine 55 divided by answer. So it is 0.697. We have to take the tan inverse of this, 34.91. Answer is 34.91 degree. Okay, so this is the problem. These types of problems may ask in same exam for 5 to 6 marks. Okay, we will take one more example. Yes, the sum of two concurrent forces P and Q is 270 Newton. Now the problem is given in different way. Sum of P and Q is equal to 270 Newton is given. P plus Q is equal to 270 Newton is given, and the resultant is 180 Newton. The problem is of different type. Value of resultant is given 180 Newton. If resultant is perpendicular to P, then find P and Q. Resultant is perpendicular means diagram will be like this. See, this is force P and this is resultant which is given. Okay, so we don't know where is Q. ये साइड में Q है या ये साइड में Q है हमको पता नहीं, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. ओके,
Yes. So we don't know the value of theta here, but we know the alpha. What is alpha? Alpha is the angle of resultant with one of the force which is 90 degree. Okay, so आपको क्या P and Q फाइंड करना है, P and Q फाइंड करना है. ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले क्या दिया है, P प्लस Q इज इक्वल टू 270 न्यूटन इज गिवन. ओके, एंड R इज इक्वल टू 180 न्यूटन इज गिवन. ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे टैन अल्फ़ा का. अब टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा. ठीक है, टैन अल्फ़ा की वैल्यू है 90 इज इक्वल टू Q हमको पता नहीं है, Q साइन थीटा भी हमको पता नहीं है, P प्लस Q कॉस थीटा. ठीक है, तो अभी ये टैन 90 कितना रहता है, इन्फिनिटी रहता है. इन्फिनिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/0 इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा. तो अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो ये आता है P प्लस Q कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. सो Q कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस P इज इक्वल टू माइनस P. ठीक है, अभी ये वैल्यू हम ध्यान में रखेंगे, Q कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस P. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हम R का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. आर स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा. ओके, अभी Q कॉस थीटा की वैल्यू पता है हमको माइनस P, तो ये Q कॉस थीटा की ये जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे. ओके, माइनस P. ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P और Q कॉस थीटा है माइनस P. P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर इज इक्वल टू 180 स्क्वायर. सॉरी 180 हम डायरेक्ट, हाँ, R स्क्वायर. ठीक है, तो इस पे से क्या आता है, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर. सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ओके, सो Q प्लस P इंटू Q माइनस P इज इक्वल टू R स्क्वायर. ठीक है, R स्क्वायर. अभी यहाँ से हम देखो P प्लस Q 270 और R है 180, तो उसकी वैल्यू लेके हम यहाँ पे पुट करेंगे. P प्लस Q कितना है 270 इंटू Q माइनस P इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है, R 180 स्क्वायर, 180 स्क्वायर. सो Q माइनस P इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 180 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 270 करेंगे. ओके, 180 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 270, 180 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 270, तो ये आता है 120. ठीक है, और Q प्लस P हमको पता है कितना है 270. ये दो इक्वेशन है. अगर ये दो इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, देखो इसमें भी आपको सिखा देती हूँ कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन आएगा, 1. ठीक है, वो आएगा. अभी यहाँ पे A 1 है, B माइनस 1 है, C 120 है, Q 1 है, ये भी 1 है, ये 270 है. ठीक है, तो अभी Q की वैल्यू यहाँ पे मिलती है 195 और P की वैल्यू मिलती है देखो 75. ओके, दिस इज़ द आंसर. ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आया, फिर से बताती हूँ. देखिए P प्लस Q इज इक्वल टू 270 न्यूटन, R इज इक्वल टू 180 न्यूटन. ठीक है, सो टैन अल्फ़ा Q साइन थीटा
अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। अल्फ़ा की वैल्यू 90 यहाँ पे पुट की है तो tan 90 1/0 आता है, यानी इन्फिनिटी रहता है, ठीक है। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमको ये इक्वेशन मिला, इससे क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी। और फिर हमने आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला उसमें क्यू कॉस थीटा की वैल्यू जो हमको माइनस पी मिली थी वो हमने पुट की है, ठीक है। तो अभी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके। क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट हमने एक्सपांड किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा। फिर क्यू प्लस पी, जो दोनों फोर्स का एडिशन हमको दिया हुआ है, इट इज़ गिवन 270, तो वो हमने पुट किया है। इस पे से हमको क्यू माइनस पी की वैल्यू मिलती है। फिर क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी, ये दो इक्वेशन यूज़ करके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज़ करके हमने ये दो वैल्यू फाइंड किया, आंसर फाइंड किया, ओके। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। The resultant of two forces is 180 Newton. The problem is given R is equal to 180 Newton given. It makes an angle of 40 degree with each force, ठीक है। रिजल्टेंट जो है वो हर एक फोर्स के साथ एंगल बनाता है 40 डिग्री का। तो ये भी 40 है और ये भी 40 है। P Q और ये रहा रिजल्टेंट 180 न्यूटन, ठीक है। दिस इज गिवन। अभी थीटा क्या आएगा 80 डिग्री, अल्फ़ा क्या आएगा 40 डिग्री। अल्फ़ा मतलब क्या, अभी यहाँ पे अल्फ़ा आप कौन सा भी लीजिए क्योंकि दोनों भी सेम है। किसी भी फोर्स के साथ जो एंगल रहता है वो हम अल्फ़ा कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, पी कितना और क्यू कितना, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 180 स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब थीटा की वैल्यू क्या है 80 कॉस 80, ठीक है। अभी ये इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। फिर हम अभी tan अल्फ़ा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। tan 40 q साइन 80 अपॉन p प्लस q कॉस 80, ठीक है। तो tan 40 की वैल्यू आती है 0.84। कैलकुलेटर में अगर हम डालते तो वो tan 40 की वैल्यू आती है 0.84 और sin 80 की वैल्यू आती है, देखिए सी tan 40 0.839 sin 80 0.98, ओके। तो ये आएगा 0.98 क्यू अपॉन पी प्लस कॉस 80 0.173 क्यू, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.84 पी प्लस 0.145 क्यू इज इक्वल टू 0.98 क्यू।
ये जो Q है ये उधर लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा 0.98 माइनस आंसर 0.84 P इज इक्वल टू 0.84 Q। तो ये आता है P इज इक्वल टू Q, ये आता है P इज इक्वल टू Q। अभी P की वैल्यू जो है वो Q एंड P की वैल्यू सेम है, तो हम वो इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे 180 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P। Q की जगह पे हमको P की वैल्यू पुट करनी है, तो वो भी स्क्वायर हो जाएगा, P इंटू P स्क्वायर टू कॉस 80। तो ये आता है 2P स्क्वायर प्लस कॉस 80 0.173 इंटू 2P स्क्वायर। तो ये आएगा, देखो ये आएगा 2 प्लस 2.34 P स्क्वायर इंटू 180 स्क्वायर। ठीक है, अभी दोनों साइड ये सॉल्व करेंगे तो इससे हमको P की वैल्यू मिलेगी। देखो 180 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये वैल्यू मिलती है हमको P की 117.48 न्यूटन। तो Q भी उतना ही आएगा 117.48 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि P एंड Q सेम है। ओके, सो देखिए इससे आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि कौन सा फोर्स P है, कौन सा फोर्स Q, मतलब एक फोर्स P है एक फोर्स Q है। थीटा यानी दोनों फोर्स में जो एंगल है वो थीटा है। अल्फ़ा यानी रिजल्टेंट का किसी एक फोर्स के साथ एंगल। ठीक है, फिर दो फॉर्मूले हैं आपके पास, रिजल्टेंट का फॉर्मूला और टैन अल्फ़ा का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले यूज़ करके आपको आंसर फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, होमवर्क करना पड़ेगा। सिर्फ क्लास में जो आपको टीचर पढ़ाते हैं वो अटेंड करने से नहीं होगा, या ये वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो अभी आप होमवर्क कीजिए एक मतलब ये प्रॉब्लम जो है, आज मैंने 3 प्रॉब्लम लिए, कल एक प्रॉब्लम लिया। तो आप गूगल पे अगर डालते हो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, तो उस पर आपको बहुत सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उसमें से आप कुछ भी 1-2 प्रॉब्लम उठा के सॉल्व कीजिए, या यूट्यूब पे आपको मिलेंगे तो यूट्यूब से आप सॉल्व करेंगे तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, थैंक यू।